کی اکثریت نے مینڈیٹ دیا ہے، عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سیاسی تعاون پر متفق، سیاسی عدم استحکام سے ملک کو بچائیں گے۔ دونوں جماعتوں کے قائدین کا اصولی اتفاق۔ بلاول ہاؤس لاہور پہنچنے پر بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف اور نون لیگ کے دیگر رہنماؤں کو گلے لگایا۔ آصف زرداری نے بھی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ انتخابات کے بعد نمبر گیم اور جوڑ توڑ، مسلم لیگ نون اور ان کے پاکستان بھی مل بیٹھے، لیکن مل کر حکومت بنانے پر فی الحال فیصلہ نہیں ہوا۔ ملک میں سیاسی استحکام لانے، وفاقی حکومت میں ایم کیو ایم کی شمولیت پر تبادلہ خیال۔ مسلم لیگ قاف بھی سرگرم، چودھری شجاعت کل اسلام آباد میں نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے بیٹھک لگائیں گے۔ پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد رکن قومی اسمبلی وسیم قادر مسلم لیگ نون میں شامل۔ پی ٹی آئی لاہور کے جنرل سیکرٹری وسیم قادر پارٹی کے پہلے رکن ہیں جو نون لیگ میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ مزید 4 آزاد اراکین راجہ خرم نواز، سردار شمشیر مزاری، میاں خان بگٹی، بیرسٹر عقیل نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں۔ قومی اسمبلی کے 264 حلقوں کے نتائج جاری۔ مسلم لیگ نون کی 79 نشستیں، 101 آزاد امیدوار کامیاب، 92 کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل۔ پیپلز پارٹی کو 54 اور ایم کیو ایم پاکستان کو 17 سیٹوں پر کامیابی ملی۔ جے یو آئی فے کی 4، مسلم لیگ قاف کی 3، استحکام پاکستان پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کی 2 نشستیں۔ این اے 88 کا نتیجہ روک لیا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ اپنی پوزیشن پر سمجھوتے کی بجائے اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ جیو نیوز کی خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن میں بات کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا، قومی اسمبلی میں اپنی جماعت بنانے کی بجائے کسی پارٹی کو جوائن کرنے کو ترجیح دیں گے۔ پارٹی کون سی ہوگی یہ فیصلہ 1-2 دن میں کر لیں گے۔ کہا، ہم جس پارٹی کو جوائن کریں گے اس سے مخصوص نشستیں اپنے لیے لیں گے، یہ نشستیں اس پارٹی کو نہیں دیں گے۔ جماعت اسلامی کو جوائن کرنے کے لیے ان سے نہ اب تک کسی نے رابطہ کیا، نہ ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ پی ٹی آئی کے وسیم قادر کی نون لیگ میں شمولیت پر کہا، یہ خدشہ تو پہلے سے تھا کہ کچھ لوگ وفاداریاں تبدیل کریں گے، تاہم یہ خبر غلط ہے کہ ہم نے وفاداریاں تبدیل کرنے سے روکنے کے لیے کامیاب امیدواروں سے استعفے اور حلف نامے طلب کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی کے نتائج مکمل۔ مسلم لیگ نون 137 نشستوں کے ساتھ سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے والی جماعت قرار۔ 138 آزاد امیدواروں میں سے 116 کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل۔ پیپلز پارٹی 10 سیٹوں پر کامیاب رہی۔ 6 کامیاب آزاد امیدواروں کا نون لیگ میں شامل ہونے کا اعلان۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نون لیگ نے پنجاب میں حکومت بنانے کا ہدف حاصل کر لیا۔ 22 آزاد اراکین میں سے 80% کے ساتھ معاملات طے پا گئے۔ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کے 10 ووٹ بھی مل سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی حمایت سے جیتے ہوئے اراکین سے بھی نون لیگ کا رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نتائج کے مطابق سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت حاصل۔ 84 سیٹوں پر پیپلز پارٹی کامیاب، 28 پر ایم کیو ایم پاکستان اور 13 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آزاد امیدوار سب سے آگے، 90 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ جے یو آئی فے 7، مسلم لیگ نون 5 سیٹوں پر کامیاب رہیں۔ بلوچستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے 11 نشستوں پر کامیاب، مسلم لیگ نون 10 سیٹوں پر کامیاب ہوئی۔ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کے لیے تحریک انصاف میں جوڑ توڑ اور رابطے۔ علی امین گنڈا پور، ظاہر شاہ، مشتاق غنی اور شکیل احمد وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیمور جھگڑا، کامران بنگس اور محمود جان سرگرم ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ کے نام پر منگل تک فیصلہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے لیے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کون بنے گا، نواز شریف بتائیں گے۔ رہنما نون لیگ اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا نون لیگ 155 نشستوں کے ساتھ پنجاب کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے۔ خواتین اور اقلیتی نشستیں ملنے کے بعد یہ نمبر اور بڑھے گا۔ وفاق میں مخلوط حکومت کے امکانات پر سابق وزیر قانون نے کہا،
वफाहिमती सियासत से मुल्क को फायदा होगा, विफाक मजबूत होगा। मरकज का फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। एक जमात को इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात खुद नून लीग को भी हैं, मगर जैसे भी मैंडेट मिला उसका एहतराम करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ सियासी जमातों का एहतजाज। JUIFA का कराची में एहतजाज, जामशोरो, शखर, कंदकोट, जैकबाबाद और शुजावल में भी शाहराहों पर धरने। राशिद शुमरो का नताइज कलअदम करार देकर नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। PTI का NA 119 लाहौर के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। पुलिस ने कार्रवाई करके उम्मीदवार शहजाद फारूक समेत कई कारकुन पकड़ लिए। पेशावर में PTI के कारकुनान ने पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा एक तरफ से बंद कर दिया। पिंडी में जिलाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर भी PTI का एहतजाज। नसीराबाद में PB14 के नतीजे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का तीसरे रोज भी धरना। सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह बंद। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। कोयटा में BNP, पश्तूनख्वा, मैप और नेशनल पार्टी का DC ऑफिस के सामने एहतजाज। पीपुल्स पार्टी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्त। PB21 हब के 39 पोलिंग स्टेशनों पर वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों और पार्टी के नुमाइंदों को गिनती के अमल के लिए हाजिर होने की हिदायत। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि रात 2:30 बजे 4 पुलिस मोबाइल उनके घर पहुंची। घर के बाहर लगे कैमरे को भी तोड़ा गया। उनकी अहलिया ने शोर मचाया, मोहल्ले वाले बाहर निकल आए। शोर मचने पर पुलिस वापस चली गई। इल्जाम लगाया कि पुलिस उनके घर से फॉर्म 45 चोरी करने आई थी। नवाज शरीफ की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने RO को NA 15 का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। NA 46 अटक, NA 47 और NA 48 इस्लामाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी हतमी नोटिफिकेशन के इजरा से रोक दिया। NA 47 का नतीजा शोएब शाहीन, NA 48 का नतीजा अली बुखारी ने चैलेंज किया। जाली इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इलेक्शन कमीशन पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM को सपोर्ट करने का इल्जाम। इलेक्शन कमिश्नर के फौरी इस्तीफे और तहकीकात के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन कायम करने का मुतालबा। कहा कि कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चुराकर MKM को जितवाया गया। आज़ाद सर्विस के मुताबिक जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। MKM कहीं मौजूद ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने नताइज को दुरुस्त न किया तो एहतजाज उसके हेड ऑफिस इस्लामाबाद तक बढ़ा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि फॉर्म 45 इकट्ठे कर लिए हैं। PTI की 182 नशिस्तें बनती हैं। MKM एक नशिस्त भी नहीं जीती। उनकी जीती हुई नशिस्तें MKM को दी गईं। ये भी कहा कि मरकज और पंजाब में तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद की जरूरत नहीं। दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान ने कहा कि PTI की सियासत का नया मरहला शुरू हो गया है। बानी PTI जिसे खड़ा करेंगे वो जीतेगा। कारकुन पार्लियामेंटेरियंस के अलल्ले तलल्ले बर्दाश्त न करें। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर अहमद वली खान ने कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात बदतरीन इंतखाबात थे। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को डील करके जितवाया गया। ये इंतखाबात सौदागरी का बाजार थे। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी नहीं होते। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी उनको पार्टी नहीं कहा जा सकता। और जो वो कहते हैं कि पूरी कौम उनके साथ निकल आई है, पूरी कौम ने उनको मैंडेट दे दिया है। 4.5 करोड़ तरीके फसाद के खिलाफ पड़ा है। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी नहीं कहा जा सकता। 4.5 करोड़ वोट उनके खिलाफ पड़ा है। 100% रिजल्ट आए तो उन्होंने धांधली का शोर मचा दिया, जिसे एतराज है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाकर बात कर सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी असेंबली और पंजाब में मुस्लिम लीग नून वाहिद अक्सरियती पार्टी है। मुस्लिम लीग नून सपोर्ट के बगैर तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को जिम्मेदारी दी है। वो पार्टियों से बात कर रहे हैं। एक शख्स एक फितने के लिए पाकिस्तान का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि वो खवातीन को मुश्किलात के बावजूद वोट के लिए बाहर निकलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। बयान में कहा कि नौजवान भी दाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लेकर मुल्क की बागडोर संभालने का फैसला किया। माली बहरान से निकलने और मुश्किल फैसले करने के लिए हकीकी मैंडेट जरूरी था, जो नजर आ रहा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारिजा उमूर कमेटी के चेयरमैन माइकल मिकॉल ने कहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में करप्शन या फ्रॉड के इल्जामात की मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। इलेक्शन में करप्शन या फ्रॉड के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीका पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हुकूमत मुंतखब करने के हक और ऐसी जमहूरी मुंतखब हुकूमत की हिमायत करता है जो कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक का एहतराम करती हो। दादू में सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का इल्जाम। कौमी असम्बली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार इरफान जफर लगारी ज़ेरे हिरासत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैयाज बाट और कमर लगारी को भी हिरासत में ले लिया गया। फायरिंग का वाकया हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब टेक्निकल कॉलेज मेहर के बाहर पेश आया। लाड़काना में नोडेरो बाईपास के करीब दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। मौके पर पहुंचने वाले पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंग। ASI जाँ बहक। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का हाई प्रोफाइल दहशतगर्द की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। दाइश कमांडर सूरत गुल और सैफुल्ला हलाक। ISPR के मुताबिक असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। दहशतगर्द कमांडर शहरियों की टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दहशतगर्दी की मुताबिक सरगर्मियों में मुलविस था। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर का दौरा। महकमा सेहत के FM रेडियो सेहत जिंदगी का इफ्तिताह किया। गुफ्तगू में कहा कि FM सेहत जिंदगी सूबे सेहत में मुफीद प्रोजेक्ट साबित होगा। मुख्तसर अरसे में कई अस्पतालों को अपग्रेड किया है, जबकि बाद अस्पतालों की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। जो अस्पताल अपग्रेड नहीं हुए वो अगले फेज में किए जाएंगे। أجي أخذك حبيبتي. طيب ما أنا يا حبيبتي رح أجي أخذك. गजा की 6 साल की बच्ची की फरियाद ने सुनने वालों को दहला दिया। फलस्तीनी हिलाल अहमर को बच्ची की कॉल इसराइली फौज की फायरिंग से कट गई। 2 इमदादी कारकुन बचाने पहुंचे तो इसराइली फौज ने उन्हें भी शहीद कर दिया। गोलियों से छलनी गाड़ियों से बच्ची और उसके घर वालों की लाशें 2 हफ्ते बाद मिली। 24 घंटों में इसराइली फौज की हमलों में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के लिए नई फौजी इमदाद की तैयारी पर अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की मुखालफत। रुकने कांग्रेस ने कहा कि दफा में पनाह लिए फलस्तीनियों को हमलों की धमकियां दी जा रही हैं, उनके पास कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं। क्या नस्ल कुशी पर नेतन्याहू की हिमायत खत्म करने के लिए ये काफी नहीं? मुज़ाहिमत की अलामत इंसानी हुकूक और जमहूरियत की इलमबरदार आसिमा जहांगीर को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट की 40वीं बरसी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की अपील पर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल। मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। मुत्तहिदा अरब इमारात की 7 में से 6 रियासतों में बारिशें। अबू धाबी, दुबई, शारजा, फुजैरा, अजमान और रास अल खैमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें हुई। महकमा मौसमियात ने खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया। मजीद बारिशों की पेशगोई। दुबई और शारजा के तालीमी इदारों में पीर को छुट्टी दे दी गई। सरकारी और निजी कंपनियों के मुलाजमीन को घरों से काम करने और शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराकर चौथी मर्तबा टाइटल अपने नाम किया। 254 रन के ताकुब में भारतीय टीम 174 रन पर ढेर हो गई।
Sigue Vini al arco. ¡Gol! Se puede venir. Ahí está Bellingham, salió Gazzaniga. Bellingham. ¡Gol! Entró, superó la marca, le pegó abajo. Gazzaniga remate de un gol. Carrerado Rodrigo. Rodrigo está por el suyo. Está Rodrigo. लीग ला लीगा के बड़े मुकाबले में रियल मैड्रिड ने जिरोना की शिकस्त दे दी। 0 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। बेलिंगहम के शानदार परफॉर्मेंस, 2 गोल किए विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो ने 1 गोल किया। रियल मैड्रिड 61 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहले, जबकि जिरोना 56 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। कामयाबी पर जियो न्यूज की इंतजामिया अवाम की शुक्रगुजार है। नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और ये नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के, इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर रस्मी नतीजा, हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज में पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। लाहौर में फैज मेले का तीसरा और आखिरी रोज, ड्रम सर्कल बनाकर ड्रम बजाने की मशक। बेनजीर भुट्टो के मुताले किताब पर नशिस्त। इंसानी हुकूक की रहनुमा हिना जिलानी ने बेनजीर की जिंदगी के कई पहलुओं पर रोशनी डाली। आर्ट और सकाफत से मुतालिक नशिस्त में मुख्तलिफ अदाकारों ने इजहार ख्याल किया। इसमें एक तलवी है। हाजी मतलब बताइए तलवी का। गाड़ी सिग्नल पर रुके शीशे पे मांगने वाले, घर में आओ ड्राइंग रूम में मांगने वाले। जब इस मुल्क की 1.5 पाव आबादी फकीर हो तो वो मुल्क क्या तरक्की करे? तुम समझते क्या हो? आपा बेगम मुझे रोक सकती है कबाचा? सर मेरा नाम कबाचा नहीं है। तुम कान खोल के सुन लो और बता दो आपा बेगम को भी कि मैं उस औरत से शादी हरगिज़ से करूंगा। समझते क्या हो तुम कबाचा? सर मेरा नाम कुतुबुद्दीन है। तुम्हारा नाम टिम्बकतू हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है कबाचा। सबसे ज्यादा बेदर्द बाप मैंने नहीं देखा। वैसे आपस की बात है, तुमसे ज्यादा नालायक बेटी मैंने नहीं देखी। अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। काजी वाजिद ने अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए जो मद्दाहों के जहनों पर नक्श हैं। तुम्हारे हाथ अगर थोड़े से प्यारे होते ना तो ये कड़े तुम्हारी कलाई पर खिलते। इतना तो मैं समझ गई हूँ आपको। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। वक्त आप उन्हीं के लिए निकालते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। अब इतना आसान थोड़ी पूरा का पूरा सुल्तान नहीं है। सुल्तान और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश एक और दिलचस्प कहानी ड्रामा सीरियल शिद्दत का प्रीमियर कल रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।